Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture we will continue chapter number 6 of history, that is new questions and ideas. This is the lecture number 3 of this chapter. Students, in the previous two lectures we discussed about the Jainism, about the Buddhism, about the Gautam Buddha and Mahavir Vardhamana. Today in this lecture we will be discussing in detail about the Buddhism, or you can say about the teachings of the Gautam Buddha. So Buddhism began in India over 2005 years ago. The religion is based on the teachings, life experiences of its founder Gautam Buddha, who was also known as Siddhartha. Because the real name of the Gautam Buddha, I earlier also told you, it was Siddhartha Gautam. When he left his life and he gained the attainment, then he was known as Gautam Buddha. Otherwise his name was Siddhartha Gautam. He was born into a royal family of Sakya clan who ruled from Kapilavastu in Lumbini. अब ये उसका clan बताया है. His clan or his family was related to Sakya. At the age of 29, at that time he was married also and he was having a son also. At that time he left home and rejected his life of riches and embraced a lifestyle of asceticism. He was very much rich at that time, but he left all the worldly pleasures and he embraced the lifestyle of asceticism. Means he became a saint. He was a very self-disciplined person. After several years, he attained enlightenment under a peepal tree. He was doing the meditation under a peepal tree. He did it for so many years and suddenly one day he gained enlightenment in Bodh Gaya in Bihar. Since then, he came to be known as the Buddha or the enlightenment, and his followers were known as Buddhist. जब पीपल के ट्री के नीचे बैठ के उसने मेडिटेशन करी एंड बहुत सारे ईयर्स के बाद उसको नॉलेज गेन हो गई, एनलाइटनमेंट हो गया, तब से उसको क्या बोला जाने लगा? गौतम बुद्धा. And his followers were known as Buddhist. After that he started teaching the people, he started spreading his teachings. So he first taught in Varanasi, then Sarnath, and spent the rest of his life going from place to place and teaching the people. Finally he died when he was of 80 years in Kushinara in Uttar Pradesh. Teachings of the Buddhism. Like we studied about the doctrines or the teachings of Jainism, similarly here we have the teachings of Buddhism. So first one is, he said, life is full of sufferings and unhappiness. लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स हैं. हर पर्सन किसी न किसी रीज़न की वजह से अनहैप्पी है. अब वो सफरिंग क्यों है? वाई ही इज़ अनहैप्पी? बिकॉज ऑफ द डिज़ायर्स. उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ इच्छाएं हैं. सी अगर हमें कोई इच्छा नहीं है, अगर हमें कोई डिज़ायर नहीं है, तो ऑब्वियसली हम अनहैप्पी भी नहीं होंगे. हम अनहैप्पी क्यों होते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट समथिंग और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है. सो सफरिंग कैन बी रिमूव बाय रिमूविंग डिज़ायर्स. आपकी सफरिंग ख़त्म हो सकती है अगर आप अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दो. वन मस्ट फॉलो द राइट पाथ. ही सेड दैट यू हैव to follow the right path. Buddha preached the importance of good actions. He believed that our karma was based on our actions, good or bad. उसने क्या कहा कि जो हमारा कर्मा है, जिसका हमें बाद में फल मिलता है, वो किस बेस पे मिलेगा कि हमारे एक्शंस गुड हैं या बैड हैं. सो ही सेड एवरी पर्सन शुड बी इंडल्ज्ड इन डूइंग गुड एक्शंस. यू हैव टू फॉलो द राइट पाथ. यू हैव टू डू द राइट एक्शंस. Therefore, Buddha asked his followers to adopt the eightfold path. अब बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को क्या कहा कि आपको eightfold path चूज़ करने हैं, फॉलो करने हैं. The noble eightfold path are also known as आर्य अष्टमार्ग. अब इसमें क्या था? फर्स्ट वन इज़ राइट व्यू ऑफ फेथ. आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, वो बिल्कुल राइट होना चाहिए. आप सही तरीके से चीज़ों को देखो और सही चीज़ पर भरोसा करो. टू सी द वर्ल्ड थ्रू द आइज़ ऑफ द बुद्धा विद विजडम एंड कंपैशन. हर चीज़ को विजडम के साथ देखो. प्रॉपर फेथ होना चाहिए. राइट बिलीफ शुड बी देयर. आपके जो विचार हैं, जो आपकी थिंकिंग है, वो सही होगी. अगर वो सही होगी तो आपका करेक्टर भी सही होगा. सो राइट बिलीफ, क्लियर एंड काइंड थॉट्स से बिल्ड गुड स्ट्रॉन्ग करेक्टर. सो योर बिलीफ शुड ऑल्सो बी द राइट वन. Next he said right speech. Means you have to speak the good words. You have to speak politely. You have to speak kind and helpful words which help in gaining the respect and trust. Right action. आपका जो action है, जो आप work कर रहे हो, that should be right. You have to do good deeds. Deeds means actions. Right living. Your means of livelihood should be right. आप जो काम कर रहे हो to attain the living, कुछ मनी अर्न करने के लिए, जो आपको अपने बेसिक नीड्स के लिए चाहिए, जो भी आप वर्क कर रहे हो, दैट शुड ऑल्सो बी द राइट वन. राइट एंडेवर, मेकिंग राइट एफर्ट्स. एंडेवर मीन्स डूइंग सम हार्ड वर्क. जो भी आप एंडेवर कर रहे हो, दैट शुड बी राइट. योर एफर्ट शुड बी राइट टू कंट्रोल द इविल थॉट्स एंड एक्शंस. जो भी आप वर्क कर रहे हो, इट शुड बी कि आप उसमें किसी भी गलत काम में इंडल्ज नहीं हो रहे हो. आपके जो एफर्ट्स हैं, दैट शुड ऑल्सो बी राइट.
राइट रिकलेक्शन, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, जब आप कुछ थिंकिंग कर रहे हो तो जो आपके थॉट्स भी हैं ना वो भी सही होने चाहिए. एवरीथिंग शुड बी राइट. राइट मेडिटेशन टू कंसंट्रेट एंड डायरेक्ट द माइंड ऑन द राइट थिंग्स. सो बेसिकली बुद्धा ने क्या कहा, आप जो भी कर रहे हो, आप बोल रहे हो, यू आर थिंकिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर राइटिंग, यू आर डूइंग एनी वर्क, दैट शुड बी right in every aspect. Next is spread of Buddhism. Like the Jainism spread in some parts of India, unlike that, Buddhism spread in other countries also. Because of the royal patronage from rulers like Ashoka and other rulers, they just followed Buddhism. They supported the Gautam Buddha's teachings, and because of that, the teachings spread in other parts of the world also. That is some in other countries also. नेक्स्ट इज़ द संघा. नाउ व्हाट इज़ द संघा? बेसिकली संघा इज़ अ प्लेस जहाँ पर बुद्धिस्ट के या जो जैनिज़्म के फॉलोअर्स हैं वो सारे जाते हैं. जहाँ जैनाज और बुद्धिस्ट जाते हैं, असेंबल होते हैं, दैट प्लेस इज़ नोन एज संघा. सो इट इज़ मेनली अ प्लेस फॉर द फॉलोअर्स ऑफ द महावीर एंड द बुद्धा, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है नॉलेज के लिए. द रूलर्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा आर रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघा आर कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड द विनया पिटका. अब जो भी रूल्स वगैरह हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो सारी एक बुक में हैं. दैट बुक इज़ नोन एज विनया पिटका. इन दिस all the rules of all the teachings of the Buddhist are there. Initially only the men could join the संघा. पहले वुमेन के पास राइट नहीं था. अगर कोई पर्सन स्लेव है उसको ज्वाइन करना है तो वह पहले अपने ऑनर से, अपने फैमिली से सबसे परमिशन लेगा एंड देन ओनली ही कुड ज्वाइन द संघा. बट वुमेन के पास ऐसा राइट नहीं था. लेटर ऑन वुमेन को भी राइट मिल गया था. वुमेन भी संघा ज्वाइन कर सकती थी, वो भी अपनी फैमिली छोड़ सकती थी. एंड दे वर नोन एज भिक्खूज एंड भिक्खुनीज. They were known as bhikkhus and bhikkhunis. Why they were known as these? Because जब वो अपना लाइफ अपने फैमिली छोड़ देंगे, इधर मेन और वुमेन, वो संघा में आ जाएंगे. और संघा का हर पर्सन क्या करता था, उसको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते थे, जिसमें क्या इंक्लूड था कि आपको भिक्षा मांगनी है, भिक्षा मांग के आपको अपनी लिविंग चलानी है. सो दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खूज एंड भिक्खुनीज. नाउ लास्ट वन इज monasteries. Buddhist Sangha was very hard. There was the life and the rules of the Buddhist Sangha was very hard and very puritanical. The bhikkhu was to beg his food from door to door. The members of the Sangha bought the monks and the nuns what to spend most of the year among the people preaching the message to the Buddha. अब जो भी बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धास के फॉलोअर्स थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, अगर उन्होंने संघा ज्वाइन कर लिया, लाइफ छोड़ दी, तो वो क्या करेंगे, वो भिक्षा मांग के तो खाएंगे अपना फूड वगैरह, और उनकी पूरी लाइफ किस में जाएगी, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टू टीच द पीपल, टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा. उन्हें हर एक को टीचिंग्स बतानी होती थी, ये उनका काम होता था. सो फॉर दैट वो ट्रेवल करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. ओनली इन द रेनी सीजन दे स्टे एट वन प्लेस. लेकिन रेनी सीजन में वो कहीं नहीं जाते थे. सो एट दैट टाइम दे रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि येस, सम लोकेशन, सम फिक्स शेल्टर शुड बी देयर जहाँ वो रेनी सीजन में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ड्यूरिंग द हार्श वेदर कंडीशंस प्रोटेक्शन उन्हें चाहिए थी. सो फॉर दैट दे मेड द मोनास्ट्रीज. मोनास्ट्रीज क्या है, वो प्लेस जहाँ पर मॉन्क्स एंड नन्स, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट हैं, जो भिक्षुस थे, वो वहाँ पर रहते थे. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द विहाराज. दे वर टू लिव इन मोनास्ट्रीज और यू कैन से विहाराज एंड ननरीज, जहाँ नन्स रहते हैं, एंड नॉट इन द फैमिलीज. वो अपने फैमिलीज तो ऑलरेडी छोड़ चुके थे संघा जब उन्होंने ज्वाइन किया था. सो अर्लियर द मोनास्ट्रीज वर मेड ऑफ वुड एंड लेटर ऑन दे मेड इट जस्ट लाइक अ पक्का हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स. सम हिल्स वर ऑल्सो डग आउट सो दैट द caves can be made. This was especially in the Western India. So basically the Buddhism religion says that you have to follow the right action, you have to speak the right words, your thoughts should be right, and with that you can join the Sangha also. For that you have to follow some strict rules, and later on the people they made the monasteries also, and the Buddhists, the monks and the nuns, they keep on moving from one place to another, and they spread the teachings of the Lord Buddha.